Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome to this online session of class 7 mathematics, and today we will learn about the multiplication of the decimals. In the previous lecture, we discussed about the practice question 3 up to 3.7. All the questions we referred into the previous lecture. So if you don't watch this, then you can also use the previous lectures and you can write all the practice questions that is related with the practice question 3.1 say 3.7. Okay, so today we will learn about the new concepts, that is the multiplication of the decimals. कैसे decimal को multiplication किया जाता है. So first we will watch just one short videos for that, and then after we will move on to the actual procedure of the multiplication of the decimal. So let us start with this particular video. Multiplication of decimals. Hello students, in this video we will learn how to multiply decimal numbers using a real life example. Meera has a piece of land of length 8.3 hectometers and breadth 3.5 hectometers. She wants to use this land to grow 4 types of plants: tomatoes, cabbages, oranges, and carrots. So she decides to split the land into 4 parts. But here's the catch. She wants a larger space for growing tomatoes. For this, she marks a portion of land of length 8 hectometers and breadth 3 hectometers. Of the remaining area, she uses 0.3 hectometers of length and 3 hectometers of breadth for growing oranges. Next, she uses 8 hectometers of length and 0.5 hectometers of breadth for growing cabbages. Finally, she uses the remaining space of length 0.3 hectometers and breadth 0.5 hectometers for growing carrots. Let's see how much land each plant occupies. Let's look at how she marks it. Here, this part is 0.1 hectometers long. 10 of the 0.1 hectometers part become 1 hectometer. Here, each yellow box represents an area of 1 square hectometer. We can see that Meera will need 24 square hectometers for growing tomatoes. Here the length and breadth of the land are expressed as whole numbers. What happens when the length and breadth are expressed as decimals? Let's find out. Here oranges occupy this space. As shown earlier, each segment is 0.1 hectometers long. 3 of these segments become 0.3 hectometers. 30 of these 0.1 hectometer markings becomes 3 hectometers. The oranges will occupy 0.3 multiplied by 3 square hectometers. This can be written as 3 by 10 multiplied by 3. This gives us 9 by 10 or 0.9 square hectometers. So, looking at this value, we can simply multiply the numbers without taking the decimal point. 3 multiplied by 3 is 9. Since there is only one digit after the decimal point, we should have only one digit after this point in the product. That's how we get 0.9 square hectometers. Similarly, 8 multiplied by 0.5 gives us
4.0. Moving on, let's look at the space occupied by the carets. 0.3 multiplied by 0.5 can be written as 3 by 10 multiplied by 5 by 10. This gives us 15 by 100 or 0.15 square hectometers. Here's another way of calculating the space occupied by the carets. Since there are two digits after the decimal point, we should have two digits after this point in the product. That's how we get 0.15 square hectometers. So students, this is how we multiply two decimal numbers. Goodbye and happy learning. So this is the actual procedure for multiplication of the between the decimals number. So it's a very interesting videos, and you can also see the how this particular multiple of the decimals is numbers is working over here. So let us move on to the next point. So first one, multiplication of the decimal numbers by 10, 100 and 1000. So how can this using the procedure for the 10, 100 and 1000, just we have to check it out. First one, how does the position of the decimal points change in each equation? Just we have to check it out for 10 into 0.01, 100 into 0.01 and 1000 into 0.01. So just we have to take it out the solution for it. First we have to use that 10 into 0.1. अब इसको कैसे हम मूव करते देखते हैं. अब अच्छी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मूव होता है. 0.1 इज देयर, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 से करना है. तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ही मूव होगा. तो या तो आप ये प्रोसीजर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, 10 इंटू 0.01 है तो हम 1 के नीचे 10 रख सकते हैं, 1 के नीचे 10 रख सकते हैं. ये 10 यहाँ से कट हुआ तो इसका आंसर ऑब्वियसली 1 ही रहेगा. तो जो डेसिमल यहाँ पे मूव हो रहा है आप देख सकते हो कि ये डेसिमल एक पोजीशन मूव होगा क्योंकि 10 है इसीलिए. 100 है तो दो डेसिमल मूव होगा, 1000 है तो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स मूव होंगे. तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ट्राई करते हैं. जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. तो यहाँ पे आपका आंसर जो बचता है 10 इंटू 0.1, सो ऑब्वियसली वो हो गया 0.1. ऐसा ऑब्वियसली 100 इंटू 0.01 ऑब्वियसली हो जाता है 1.0, ऐसा होता है. और लास्ट में जो आपका 0.01 है वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम से 10.0 ऐसा. तो इस तरीके से आपका कंसिडरेशन मल्टीप्लिकेशन में होता है. तो आप देख सकते हैं when a decimal number is multiplied by 10, 100 and 1000, the decimal point in the product is shifted to the right by as many places the number of zeros. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वन दिखा रहा है उसमें एक ही जीरो है 10 का. तो आपका नंबर ओरिजिनली जो मल्टीप्लाई होता है वो 0.01 है. तो ये डेसिमल पॉइंट एक ही पॉइंट्स मूव होगा. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे 10 में एक ही जीरो है. तो वो हो गया आपका 0.1. ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे तो 0.1 ही होगा. वैसे ही आपका 100 है तो 100 में 2 जीरोज है तो उसको आप 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 1 और 2 पॉइंट मूव होगा. तो आपका आंसर रहेगा 1.0, यानी 1 भी लिख सकते हो लाइक दैट वे. सिमिलर वे 1000 है आपके पास और 1000 का आप कंसिडरेशन कर रहे हो क्योंकि इसमें 3 जीरो है और आप 0.01 से कंसिडर किया मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो डेसिमल है 1, 2 एंड 3, यानी ये पीछे तो जीरो ही होगा यहाँ पे.
तो आपका जो पॉइंट्स है वो क्या होगा, 1.0 होगा, क्योंकि आपका डेसिमल कितना मूव होगा, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे मूव होगा, तो दैट इज कंसिडर एज ए 1, 0। तो आपका आंसर इसका 10 रहेगा, इसका 1 रहेगा और इसका 0.1 रहेगा। समझ में आ गया? So you have to use this rule before whenever you go for this multiplication with 10, 100 and 1000. Okay, so let us move on. The another one thing is that notice that we had to place a zero after 1 in this case, so that the decimal point gets shifted by 3 places. इसका मतलब यही होता है कि आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। So this is a multiplication rule for 10, 100 and 1000. Now we are going for the another one. So now we are going for the, after taking the multiplication of the decimal number, just we go for the division of the decimal numbers. कैसे decimal numbers का division होता है? So just we check it out. 10 into 1.01. So decimal number by 10, 100 and 1000 similar like the multiplication. 10 into 1.01, 100 into 1.01 and 1000 into 1.01. So कैसे कंसिडर होगा, आप देख सकते हो कि 10 into 1.01 मतलब आपका जो डेसिमल पॉइंट्स है, when a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000, the decimal point in the product is shifted to the right by as many place as the number of zeros, जैसे हमने आगे बना लिया। नेक्स्ट वन थिंग, टुडे वी विल सी व्हाट हैपन वी डिवाइड ए डेसिमल नंबर। अभी आपने देखा वो मल्टीप्लिकेशन था, ऑलरेडी हमने वो चीज़ सीख ली। यदि हम मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन यूज करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में, 10, 100 और 1000 में, दैट टाइम व्हाट विल हैपन? तो दैट इज ऑल्सो बी वेरी इजी थिंग। सपोज मान लो कि 2.1 डिवाइड विथ 10 है, तो हम क्या करेंगे, हाउ डज द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट चेंज इन ईच इक्वेशन? 2.1 डिवाइड विथ 10, तो 2.1 डिवाइड विथ 10 का मतलब होता है 21 के नीचे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक है तो नीचे 1 के बाद एक जीरो रहेगा, उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो 10 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपका आंसर इट शुड बी 21 ही होगा। सो फर्स्ट वन इज दैट यहाँ से डेसिमल निकालने के लिए आपको 21 के नीचे पूरा होल नंबर कर दो आप। 2.1 को होल नंबर बनाना है 21, तो उसके नीचे 10 रखना पड़ेगा, और 10 डिवीजन में है ही, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे 21 के नीचे भी 10 रखेंगे और मल्टीप्लाइड विथ 100 रखेंगे, वैसे सिमिलर वे 21 डिवाइड विथ 10 बाई 1000। तो इतनी चीज मेंशन करने के बाद जस्ट वी हैव टू चेक। तो अब क्या होगा, 21 डिवाइड विथ 10, और यदि ये डिवीजन है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 10/1 यहाँ पे है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा 1/10। सो 21/10 मल्टीप्लाइड विथ 1/10। सो 21 के नीचे 100 आएगा, 21 के नीचे 100 आएगा, तो इसका आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि 21 के नीचे 2 जीरो है, तो पहले हम 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, 2 डिजिट हो गई तो अब हम पॉइंट लिख देंगे और 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि 21 के नीचे 100 है, तो ऑब्वियसली उसका डेसिमल हम कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे राइट हैंड साइड से, 1 2, यानी 2 जीरो का प्लेस खत्म हो गया, तो सीधा हम डेसिमल पॉइंट लिख देंगे। सिमिलर वे 21 के नीचे 1000 है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 21 के नीचे 1000 है, तो 1 2, और हमें टोटल 3 डिजिट करनी है, तो अभी कोई डिजिट बची नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, बाद में ये पॉइंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 21 के नीचे 1000 है, तो 1 2 0, देन 0.021 इज दैट। सिमिलर वे 21 के नीचे 10,000 है, तो 1 2 0 फिर 0, क्योंकि 4 जीरो का प्रोविजन करना है, बाद में हमें 0 रखना है, तो 0.021 इज दैट। तो ये डिवीजन प्रोसीजर है, दैट शुड बी वेरी इजी। सो यही चीज़ आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में रखिए, और यही चीज़ को आप अपनी फेयर बुक में भी लिख लो।
Now, first one is the question is that 0.21, 0.021 or 0.0021. So that is the answer of it. Now, just we check it out in the decimal point. 2.1 divided with 10. So it becomes a 0.2. So 2 से हमारा जो डिवीजन 2.1 से हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा, आगे आएगा. मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तब डेसिमल राइट साइड पे मूव हो रहा था. अब जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव होगा. तो 2 से यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक आगे जाएगा. तो हमारा आंसर क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप 2.1 में से ये डेसिमल लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हुआ एक पोजीशन, तो 0.21 हो गया. तो दैट इज आंसर ऑफ इट. सिमिलर वे 100 है तो कितनी पोजीशन मूव होगा, दो. और 1000 है तो कितनी पोजीशन मूव होगा, 3. तो इसी तरह से आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है. इज इट क्लियर? तो ये मेथड है मल्टीप्लिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेरी इजी. सो लेट अस मूव ऑन इट. Now this all the points we have to cover here. Now when a decimal number is divided by 10, 100 or 1000, the decimal points in the product is shifted to the left by as many places as the number of zero. जितने जीरो है इतने प्लेसेस लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करके आप अपना नंबर डायरेक्ट कर सकते हो. तो इसके लिए आपको पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी नहीं. समझ में आ रहा है? ये जो आप यहाँ पे लास्ट स्टेप में किया था ये सब आपको दिख रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप एक ही रूल याद रख लो ये. सो 2.1 का होता है 0.21. 2.1 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करते तो वही 0.021 बन जाता है, और 1000 से जब डिवाइड करते तो 0.0021 हो जाता है. So that is a answer of it. Now let us move on to the another point. If we have to use the solve 6.4 divided with 2. So how to solve 6.4 by 2, because of this is a portion of division. So 6.4 divided with 2. Using this example, let us look at how to divide decimal number by a whole number. So just we have to check, क्योंकि एक डेसिमल नंबर है उससे हम होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज दैट राइट द डेसिमल नंबर एज अ फ्रैक्शन. तो पहले आपको क्या करना है, 6.4 को फ्रैक्शन में लिखना है. फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 64 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक के बाद एक ही जीरो आएगा, तो वो हो गया फर्स्ट 64/10. तो पहले उसको फ्रैक्शन नंबर में लिखना है. दूसरा स्टेप, राइट द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट. आपको क्या लिखना है, 6.4 डिवाइड विथ 2. 64 के नीचे आपने 10 लिखा है तो दैट वे वी हैव टू यूज. तो 64 डिवाइड विथ 10 डिवाइड विथ 2 को हम रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 है वो 1/2 हो जाएगा, लाइक दैट. That is the step number 2. And the step number 3 is suggesting 64 divided with 10 into 1/2. तो जितना भी चीज़ हो सकता है उसको हम कवर करेंगे. तो 64 डिवाइड विथ 2 इंटू 1/10 ऐसे हमने यूज़ किया. सेपरेटिंग द मल्टीपल ऑफ 10 हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन टू ए डेसिमल नंबर इजीली. So 64/2 into 1/10. So that way we have to using the step number 2. And then last one step is that 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 हुआ, और 1/10 को मल्टीप्लाई किया तो 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा 3.2. सो दैट इज द आंसर ऑफ इट. आप सीधा भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना. मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसी स्टेप्स को नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि 6.4 को भूल जाओ, 64 को 2 से मल्टी डिवाइड करो तो 2 3 जार 6, 0 4 बचा, 2 2 जार 4 यानी आपका रिमाइंडर 0 बचा. आपके पास 3 2 आया. अब 64 में एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2
के बाद, एक डेसिमल के बाद, तो भी आपका आंसर तो आ ही जाता है 3.2, यदि ये प्रोसीजर पूरी नहीं करनी है तो। समझ में आया ना? तो आप अपनी ऑर्डिनरी स्टाइल से भी उसका डिवीजन कर सकते हैं। सो 0.35 डिवाइड विथ 5। अब आप ऐसे ही करो। सपोज मान लो कि आपके पास 35 है और 35 को 5 से डिवाइड कर लो पहले। 5 7 जार 35, सो वी हैव टू यूजिंग 0। अब 7 है आपके पास और डेसिमल पॉइंट के बाद टू डिजिट है, तो 7 पहले लिख दो, फिर एक ज़ीरो लिख दो, क्योंकि दो डिजिट करनी है डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल के बाद दो डिजिट होगी 0 एंड 7, तो आपका आंसर आ गया 0.07। सो दैट इज द आंसर ऑफ इट। आप देख सकते हो ये पूरी प्रोसीजर करने से अच्छा है वी कैन डायरेक्टली मूव अवर स्टाइल। इस स्टाइल से भी हम कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर द डिवीजन, हाउ टू डिवाइड ए नंबर। नाउ 25.5 डिवाइड विथ 0.5 ऐसे आपको कंसिडर किया है। आप देख सकते हो कि इसी को हम डेसिमल नंबर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज मान लो कि पूरे होल नंबर को ले लो और उसको 5 से डिवाइड कर दो। सो 5 5 जार 25 हम यूज करेंगे, यहाँ पे 0 रहेगा, नीचे 5 आएगा, 5 1 जार 5, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 51 है, तो अब डेसिमल दो डिजिट का करना है, मतलब एक यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 25.5 है, दोनों जगह पे एक एक डिवीजन यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, तो 1 5 दो पॉइंट आ गया, फिर हम डेसिमल रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.51, लाइक दिस वे। सो 51 इज द आंसर। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का डिवीजन प्रोसीजर एंड आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड वेल हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एवरीथिंग। तो जितनी भी चीज़ मैंने आज बताई वो सभी चीज़ आप रूल में या डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में आप यूज़ करेंगे। सो जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल आज के मैंने एक्सप्लेन किए इस वीडियो में, वही रफ बुक में लिख के स्टेप वाइज और ऑर्डिनरी स्टाइल, मैंने दोनों स्टाइल दोनों मेथड सिखाई है, तो दोनों मेथड से सभी एग्जाम्पल्स आपको रफ बुक में करके मुझे होमवर्क में सेंड करना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द overall examples of these things. I hope that you understood well whatever I explaining today, and if you having any kind of the doubt, then you ask me. Thank you very much. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.